السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بشام حملے جیسے واقعات پاکستان اور چین کے تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش ہے جنہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بشام میں 5 چینی انجینئروں کے خودکش دھماکے میں ہلاکت کے حوالے سے داسو میں ایک تعزیتی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت چین کے شہریوں اور ان کے خاندانوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکن اقدامات کرے گی۔ انہوں نے پیر کو داسو میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئروں اور دیگر حکام سے ملاقات کی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی انسدادی دہشت گردی پولیس نے چینی انجینئروں پر حملے کے 10 مبینہ ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع شانگلہ میں ایک خودکش حملے کے نتیجے میں 5 چینی انجینئروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ نے عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت سے متعلق ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے گزشتہ ہفتے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے ایک خط میں شکایت کی تھی کہ عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا جائزہ لیا جائے۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے لکھے گئے خط پر بننے والی ایک رکنی انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ چونکہ ایک آئینی ادارے سپریم جوڈیشل کونسل یا خود سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اس لیے اگر میں اس معاملے کی تحقیقات کرتا ہوں تو یہ عدالت کے اختیارات میں مداخلت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں دی جانے والی سزا معطل کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سزا معطل کرنے کا فیصلہ سنایا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ حکومت پاکستان کی وزارت خزانہ نے اتوار کو قیمتوں کے 15 روزہ جائزے کے بعد ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ نئی منتخب حکومت کے کام شروع کرنے کے بعد پاکستان کی پیٹرول کی قیمتوں میں یہ پہلا بڑا اضافہ ہے، تاہم ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی کمی دیکھی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کو مزید بڑھا دے گا۔ افغانستان کے ایک صوبائی اہلکار نے پیر کو بتایا کہ جنوب مشرقی افغانستان میں ایک دھماکے میں 9 بچے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ یہ دھماکہ ایک ناکارہ بم پھٹنے کی وجہ سے ہوا۔ افغانستان کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے صوبائی سربراہ حمید اللہ نثار نے بتایا کہ اتوار کو صوبے غزنی کے گیرو ضلع میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک گروپ اس ناکارہ بارودی گولے کے ساتھ کھیل رہا تھا جب یہ دھماکہ ہوا۔ غزنی پولیس نے بتایا کہ بچوں کی عمریں 4 سے 10 سال کے درمیان تھیں اور ان میں 5 لڑکیاں اور 4 لڑکے شامل تھے۔ بھارت میں سینئر اپوزیشن سیاستدان اروند کیجریوال کو ایک اعلیٰ سیکیورٹی والی جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کیس کا محرک سیاسی ہے اور یہ انتخابات سے قبل سامنے لایا گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی AAP یا کامن مین پارٹی کے قانونی سربراہ سنجیو نصیر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اروند کیجریوال کو
14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। केजरीवाल की हुकूमत पर निजी कंपनियों को शराब के लाइसेंस देने के दौरान किकबैक्स वसूल करने का इल्जाम है। केजरीवाल इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इस हफ्ते फ्रांस और बेल्जियम का दौरा करेंगे। इस दौरे का मकसद यूक्रेन, गजा और हेटी की सूरत हाल, यूरोपीय यूनियन और आर्मीनिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल करना है। इसराइली फौज ने पीर को बताया कि अफवाज ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अशिफा कॉम्प्लेक्स और उसके इर्द गिर्द 2 हफ्ते से जारी हमले खत्म कर दिए हैं और इलाके से पीछे हट गए हैं। फौज ने शिफा अस्पताल पर हमले को करीब 6 माह से जारी जंग की कामयाब तरीन कार्रवाइयों में से एक करार दिया। फौज का कहना है कि उसने हमास और मुतादिद अस्करियत पसंदों को हलाक किया, जिनमें सीनियर कारकुन भी शामिल हैं। फौज के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान हथियार और कीमती इंटेलिजेंस भी मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेहत के इदारे ने कहा है कि इस कार्रवाई के दौरान मुतादिद मरीज हलाक हुए हैं, जबकि दर्जनों को खतरा लाहिक है और एक ऐसे अस्पताल को मजीद तबाही से दो चार कर दिया है जो पहले ही काम करना बंद कर चुका था। कई दिनों की शदीद लड़ाई के बाद यह भी मालूम हुआ है कि हमास अब भी गजा के सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में से एक में मुजाहिमत करने की अहल है। इसराइली पुलिस ने पीर को कहा कि उन्होंने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की बहन को जुनूबी इसराइल में गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दहशतगर्दी की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर की गई है। पुलिस ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि सबाह अब्दुस्सलाम हानिया एक इसराइली शहरी हैं और उनको तलशेवा कस्बे से हिरासत में लिया गया है। एक पुलिस तर्जमान ने कहा कि खातून पर शुबा है कि वो हमास के कारिंदों के साथ राब्ते में हैं और इसराइल में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तरगीब देती हैं और मुआविनत करती हैं। पुलिस ने कहा कि उसे 57 साला खातून के घर से दस्तावेजात, मीडिया, टेलीफोन और दीगर शवाहिद मिले हैं जो इसराइल की रियासत के खिलाफ संगीन सिक्योरिटी जराइम के कमीशन से मुताल्लिक हैं। एक इसराइली जरिए ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल पीर को एक वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें रफा में मनसूबाबंद हमले के बारे में तबादले ख्याल मुतवक्के है। इस मीटिंग से एक हफ्ता कबल इसराइल की तरफ से एक वफ्द का वाशिंगटन का दौरा मनसूख कर दिया गया था। जराए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मीटिंग का प्रोग्राम आज के लिए तय किया गया है और ये ऑनलाइन होगी। इस हफ्ते के आखिर में ये मुलाकात बराह रास्त भी हो सकती है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मीद का इजहार किया कि वो अपनी सर्जरी से मुकम्मल और जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। इसी असना में दूसरी जानिब यरूशलेम में ही नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाईवे ब्लॉक करके टायर नजर आतिश की और इसराइली वजीर आजम से इस्तीफे का और हमास की तहवील पे यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इस मौके पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तुर्किया के मुल्कगीर बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने सदर रजब तैयब अर्दवान की हुक्मरां जमात AK पार्टी के मुकाबले में दारुल-हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत कई शहरों में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलू ने सदर अर्दवान की जमात के उम्मीदवार के खिलाफ बासानी फतह हासिल कर ली। मजमूई तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ने तुर्किया के 81 सूबों में से 36 की म्यूनिसिपैलिटी जीतने के अलावा अर्दवान की जमात AK पार्टी के कई मजबूत अजला में भी कामयाबी हासिल कर ली है। सदर अर्दवान ने तकरीबन 2 दहाइयों तक तुर्की पर हुकूमत की है। इन बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने इमाम ओगलू को सदर अर्दवान के मुमकिना सदारती हरीफ के तौर पर
मजीद मजबूत कर दिया है। यूक्रेन की फौज ने पीर को इत्तला दी है कि उसने गुज़श्ता रात के हमलों में इस्तेमाल किए गए 3 में से 2 रूसी ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। उधर रूसी वजारत दिफा ने इत्तला दी है कि यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल रूस के बेलगराड इलाके में 2 ड्रोन्स पर मुश्तमिल यूक्रेन के हमले को नाकाम बना दिया गया। बेलगराड के इलाकाई गवर्नर वियाचेस्ला गिलादोफ ने डोल्गो गांव में 2 ड्रोन से मलबा गिरने के नतीजे में एक घर और बिजली की लाइन को नुकसान पहुंचाने की इत्तला दी है। यूक्रेन के सदारती मुशीर मिखाइलो पोडोलियाक ने यूक्रेन के इत्तेहादियों से रूस के हथियारों के मुकाबले में मजीद हथियारों के साथ अपनी फौज की मदद का मुतालबा दोहराया है। जापानी ज़राए इबलाग ने रिपोर्ट दी है कि अमरीकी हुकूमत जुलाई में वाशिंगटन में नेटो सरबराही इजलास के मौके पर सदर जो बाइडन और उनके जापानी और जनूबी कोरियाई हम मनसबों के दरमियान एक सरबराही इजलास का एहतमाम कर रही है। बाइडन जापान के वजीर आजम फोमियो किशिदा और जनूबी कोरिया के सदर यून सुक युल के साथ अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, जिनमें मुमकिना तौर पर चीन के खिलाफ डेटरेंस को मजबूत करने, शिमाली कोरिया के जौहरी खतरे और उस मुल्क के रूस के साथ गहरे फौजी ताल्लुकात जैसे मामलात शामिल हैं। ईस्टर के मौके पर व्हाइट हाउस में ईस्टर एग रोल तकरीब हो रही है, लेकिन बारिश के बायस सालाना इवेंट की रौनक में कमी का इम्कान है। खातून अव्वल जिल बाइडन ने इस खुसूसी त्यौहार के लिए एक थीम तरतीब दी है। तकरीब में 40,000 अफराद की शिरकत की तवक्को है। ये तकरीब सन 1878 से हर साल मुनाकिद होती है। उस वक्त के सदर रदरफोर्ड ने बच्चों को ईस्टर के अंडे रोल करने के लिए व्हाइट हाउस के लॉन में मदऊ किया था। आज दुनिया भर में अप्रैल फूल्स डे मनाया जा रहा है। गूगल के बानियों ने आज से 20 साल कबल अप्रैल फूल्स डे पर लोगों से ऐसा मजाक करने का सोचा जिस पर किसी को यकीन ना आए, यानी 1 गीगाबाइट स्टोरेज वाली मुफ्त ईमेल सर्विस जीमेल का ऐलान किया। ये स्टोरेज उस दौर में याहू और दीगर ईमेल सर्विसेज के मुकाबले में 250 से 500 गुना तक ज्यादा थी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।